let me recall the definition of T0 and T1 spaces. We have seen two separation axioms, T0 spaces. Then we have seen T1 spaces. Okay. So in T0 spaces, we have a space X. We call X is T0 if for any 2 point, any pair of 2 points X and Y, there exists an open set U containing one of those points and not containing the other. So suppose there exists this set open set U which contains X but does not contain Y. Okay, say this is U which contains X but it does not contain. So such spaces are called T1 spaces. And what about T1? So these spaces are T0. Now we define T1. Okay, so for T1, a space X is T1 if for any pair of points, say X and say this is Y, for these 2 points, we have 2 neighborhoods. So one for each. So one for each, such that a neighborhood U will contain X, but it will not contain Y. Okay, and there exists neighborhood V, which contains Y, but it will not contain X. Okay. So this is U, this is V. The neighborhood of X is not containing Y, and this V, it contains Y, but it does not contain X. Correct? Such spaces are called T1 spaces. And we already know another space, that is Hausdorff space, which is called T2 space. Okay, T2 space or Hausdorff space. So in these spaces, so X is a Hausdorff space if for any pair of points, any 2 pair X and Y, what we get 2 disjoint open sets containing each of them. Okay, so we contain U which contain X, but and we will get another open set V which contains Y and U intersection V is empty. Okay, so from here we observe that T2 space implies T1 space and T1 implies T0. Okay, any doubt? Hello? No, sir. Okay. सर T1 एक बार और समझा दीजिए. क्या? सर T1 T1 में सभी सेपरेशन एग्जियम, इनमें क्या हो रहा है कि पॉइंट्स को सेपरेट कर रहे हैं हम ओपन सेट की मदद से. पहले T0 वाले में हमारे पास दो पॉइंट हैं X और Y, और हमको एक ओपन सेट मिल रहा है जो कि किसी एक पॉइंट को कंटेन करेगा, दूसरे को कंटेन नहीं करेगा. ये T0 हो गया. T1 में दोनों पॉइंट के लिए नेबरहुड मिलेगा, मींस ओपन सेट्स मिलेंगे जो एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा. तो हमें दो नेबरहुड मिल रहे हैं. U मिला, U X को कंटेन करता है, Y को नहीं करता. ऐसे ही हमको भी ओपन सेट मिलता है, X को कंटेन नहीं करता. ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? इज दिस ओके? यस सर. ऐसे ही T2 में सेम T1 की तरह है, लेकिन एक और कंडीशन है कि U और V जो है वो दोनों डिस्जॉइंट होंगे.
T1 के केस में ये डिसजॉइंटनेस वाली कंडीशन नहीं है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना चाहते हैं कि हमें दो ओपन सेट मिले, U और V। U जो है वो X को कंटेन करता हो और Y को नहीं कंटेन करता हो, V जो है Y को कंटेन करता हो और X को कंटेन नहीं करता। ठीक है, करेक्ट, इज इट ओके? Yes, yes, sir. ओके, सो हमने पहले ही बताया था कि मीट्रिक स्पेसेज T2 स्पेस होते हैं, ये हम पहले शो कर चुके हैं आपके लिए, और ये T1 भी होंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, if convergent sequences, so convergent sequences have unique limits, okay, then X is T1. However, the converse does not hold. Does not hold. Okay, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास किसी स्पेस में हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक यूनिक लिमिट है, तो वो स्पेस क्या होगा? T1 होगा। तो सिंपल सी बात है। ओके, तो इसको देख लीजिए, लेट्स सी ए प्रूफ ऑफ दिस। So we suppose every convergent sequence has a unique limit, okay, and we assume that this X is not T1. Assume X is not T1. So we have seen it yesterday that if a space X is T1, then singletons are closed sets, and this is a sufficient and necessary condition. Okay. So what we will get from here, we will get that not every singleton is closed. Means there exists a singleton set, there exists an X such that in X such that this X is not closed. Okay, so इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका बार है वो X नहीं है, मीन्स ये इसका जो क्लोजर है वो X के अतिरिक्त किसी और पॉइंट को भी कंटेन करता है। okay, this is not there. So we all know that this always true, this is always true, and since this is not equal to X, this closure is not equal to the singleton X, this means there is some Y in this closure. Okay, correct? So what does this mean? This means this sequence X, 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 this constant sequence converges to X as well as it converges to Y. Okay, which is a contradiction. This implies this converges to X as well as Y, which is a contradiction because in the hypothesis we have every convergent sequence has a unique limit. Here we are getting two limits, okay, X and Y, which is a contradiction. So up to here we have proven. So now we will show that converse does not hold. Okay, so we have seen yesterday at the end of this lecture, yesterday's lecture, that every cofinite topology is T1. We have seen this. Okay, so here what we did, we took 2 points, two different points, distinct points, and we got two open sets U and V, such that Y is in U and X not in U, X in V and Y not in V. Okay, therefore cofinite topology is T1. So
let us take R with cofinite topology and let us see this sequence 1, 2, 3, and so on. Okay, so which is nothing but n, where n coming from Z plus. What are all limit points of this sequencing? What are the limits of this sequencing? Hello? Hello? इस सीक्वेंस के लिमिट्स क्या हैं? बताइए। बाकी लोग कहाँ हैं आज? निहारिका? यस सर। बाकी लोग किधर हैं? आपको, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं, आपको मालूम है? नो सर, नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को बोर लगता है ये, तो फिर इससे कैसे चलेगा? और आप लोग कोई जवाब भी नहीं दे रहे। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कोई बोल भी नहीं रहा है। ये कोशिश करते हैं इसका लिमिट पॉइंट निकालने का। आप कुछ गैस कर सकती हैं क्या? कौन सा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा? कुछ गैस करके बताइए प्लीज। हाँ, सर मैं सही क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल रही थी। क्वेश्चन ये है कि एक हमने बोला कि अगर कोई किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में सभी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं उनके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो, तो टोपोलॉजिकल स्पेस T1 होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। हाँ, ठीक है। इसका कन्वर्स Yes, sir. ट्रू नहीं है। हमने कहा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमारे पास एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि T1 है, लेकिन वहां पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट हो ये जरूरी नहीं है। अभी आया समझ में? Yes, sir. नीतीश कुमार, आपको आप बोल भी सकते हैं। नीतीश, नीतीश, नीतीश कुमार, हेलो नीतीश। नीतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। निहारिका, Yes, sir. आपको आवाज आ रही है ना बेटा? उनको नीतीश को शायद नहीं आ रही, वो मैसेज कर रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। आप ये बताइए, जैसे नीतीश ने लिखा है इनफाइनाइट जो है वो इसका लिमिट Yes, पॉइंट sir. होगा। तो हम देखिए, हम पहली तो बात है हमको एक कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं, ठीक है?
तो मतलब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक्स T1 है, ये हमने कल देख लिया था। ये टोपोलॉजिकल स्पेस T1 है। ओके, ये टोपोलॉजिकल स्पेस T1 क्यों है, इसको दोबारा से देखना है आपने, या आपको मालूम है ये T1 होगा? ये सर मालूम है कि ये T1 होगा, तो कोफाइनाइट है। ठीक, ओके। तो अभी आप कोई भी नंबर लीजिए। सो मैं बोलता हूँ कि कोई सीक्वेंस एक्स एन किसी एल को कन्वर्ज करती है, लिमिट एल को। ओके, यस सर। इसका मीनिंग क्या है? कोई सर भी इसका बताइए मीनिंग कोई। है कि हाँ, एल के एल के एल का एल के कोई सा छोटा भी नेबरहुड ले तो वहाँ पे एल के अलावा एक और पॉइंट हमेशा मिलेगा। एक और नहीं, एल के किसी भी नेबरहुड में एन के सभी एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी नंबर, सभी के सब वहां पर। ओके, एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स ऑल एन एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी, ये होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। वो जो है, जो आप बोल रहे हो, वो लिमिट पॉइंट के लिए होता है, जब हम सेट के लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम सीक्वेंस की लिमिट की बात करें, सीक्वेंस का लिमिट है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है, नॉट ए लिमिट पॉइंट। करेक्ट। तो एवरी नेबरहुड ऑफ ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी। अब एक काम करते हैं, क्या ये जो सीक्वेंस थी, ये जो सीक्वेंस थी, वन इसका लिमिट पॉइंट है, सॉरी वन इसका लिमिट है, ये देखना चाहते हैं। ओके, तो वन का नेबरहुड क्या होगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी में? what should be what should be an open set containing one in cofinite topology? सर माइनस इन्फिनिटी से 2 ले सकते हैं। फिर से नेहा, आप भूल रही हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट क्या होते हैं? हम देखिए, हम आर में हैं, लेकिन आपको मैंने पहले से ही ये बहुत बार क्लियर किया है कि आर में जो ओपन सेट है वो डिपेंड करता है उसकी टोपोलॉजी पर। जो आप बता रही हैं वो वो एक ओपन सेट होगा यूजुअल टोपोलॉजी में या किसी और टोपोलॉजी है। वो जरूरी नहीं है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन हो है। प्रीति सिंह, सरोज चंद्रा, सरोज आपको मेरी आवाज आ रही है? एक के नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स के बाद सारे मेंबर्स आ जाएंगे, इसको और क्लियर कीजिए। हेलो, आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन मालूम है? यस सर। क्या होती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन? सर कि ऐसे सेट का कलेक्शन हो जिनको जो सुपर सेट दिया है, यहाँ पे एक्स दिया तो एक्स माइनस ए जो ले वो फाइनाइट होना चाहिए, जहाँ तो पे ए जो है आउट। टाउ कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वो सबसेट्स होंगे आर के जो या तो एम्प्टी सेट है या फिर क्या हो,
R minus G is finite. Yes, sir. आपने जो मुझे ओपन सेट दिया था वो ये क्यों नहीं ना, तो वो एम्प्टी था ना R minus G फाइनाइट था। ठीक है, क्या आप मुझे एक ओपन सेट दे सकते हैं जो इस वन को कंटेन करता हो? थोड़ा सोचिए भैया, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज थोड़ा सोचिए। हेलो, यस सर। कुछ पता चला? सर नहीं सर, नहीं पता चल रहा मुझे। कोई और? अनुराग भारती, अनुराग, यस सर। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर मेरा तो नेटवर्क का दिक्कत चल रहा था, आ तो रही बीच में ब्रेक हो रही है। अब ये बाकियों के साथ है कि नहीं सर, मेरे साथ तो आज हो रही है। अच्छा, शायद आप लोगों को मैं, तो आप रूटीन क्लास लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से चल रहा हूँ। सो टेक एनी नेबरहुड ऑफ वन, तो एनी नेबरहुड ऑफ वन। अब वो कैसा होगा ये आप लोग पता करिए क्या होता है। ठीक है, एनी नेबरहुड ऑफ वन contains all members of this sequence except finite element. Okay, so कोई भी नेबरहुड किस फॉर्म का होगा? G होगा, वन बिलोंग्स टू G। ओके, और आप जानते हैं G कैसा है? R माइनस जी फाइनाइट है, R माइनस जी फाइनाइट। तो केवल फाइनाइट टर्म्स तो बाहर है, बाकी सारे के सारे उसके अंदर है। ओके, ऑल मेंबर्स आर inside this G. Okay, because of this thing. And this is true not only for one, this is true for two as well. This is true for three as well. And if you choose any arbitrary real number, it is true. So, fact, this is true for any real number. तो किसी भी रियल नंबर r के लिए, for all r in R, okay, for every neighborhood u of R, u contains all members of n except finitely many. ये except finitely many क्यों हो रहा? Because you know r minus u is finite. Okay? So this means the limit. So there are infinitely many limits of n. So this means n converges to each and every real number. Okay, every real number. So therefore the limit is not unique. Okay. However, this topological space, this was T1 space. So we have an example where the space is T1, but here we have a sequence with many limits. Okay, not a unity. Correct?
So then some observations. Visible to everyone? So this is not true, Nitish. मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके। नीतीश ने लिखा है कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इस फॉर्म का होगा, वो सही नहीं है। ओके, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं, ये मान लो ये g है, x माइनस जी इज नॉट फाइनाइट, so therefore this is not open in cofinite topology. Did you get this point? Hello? सर फिर वो ये कैसे होगा सर, आप ही बता दीजिए। क्या सर जी कैसे होगा, क्योंकि सर जो जी कैसे मैंने बोला जी था। जी ऐसा हो सकता है ना, कोई भी आप ले लीजिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर, फाइनाइट नंबर ले लीजिए। यहाँ पर x1 x2 xn तो xi1 नहीं है, इनके अलावा कोई भी नंबर लीजिए, जैसे r माइनस 2, दिस इज ओपन सेट विच कंटेन्स 1। आप डेफिनेशन को देखिए और उस हिसाब से बात करिए ना। अब आप इसमें कहेंगे कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो तो गड़बड़ है ना। आप इसका मतलब डेफिनेशन को ढंग से समझ ही नहीं रहे। ये वही तो लिखा है, सही है? यस सर। Okay. So here are some observations that you will do your own. So a finite even space is discrete. Okay, finite even space is discrete. अब ये कैसे है, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट था और आपने कहा था कि every singleton is closed here. Okay, तो इसका मतलब every subset is closed here. आपने ये भी बात करी थी कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, देयरफॉर एवरी सबसेट ऑफ P1 इज क्लोज्ड। अब जब सारे ही सबसेट क्लोज्ड हैं तो सारे ही सबसेट ओपन भी हो जाएंगे, देयरफॉर द टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज a topological space is T1 if and only if every finite subset of X is discrete. नीतीश क्या लिख रहे, बट r माइनस 2 इनफाइनाइट होगा ना। अरे भैया नीतीश डेफिनेशन को देखो, r माइनस 2 इनफाइनाइट होगा, लेकिन इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? तो आप लोग ढंग से देखते नहीं है। मैंने कहा g ओपन होगा, r माइनस जी इज फाइनाइट, दिस थिंग इज ओपन, इसका मतलब इस पूरे का कंप्लीमेंट क्या है? आपकी वॉइस पता नहीं, ये बहुत गड़बड़ करता है। जब तक आप लोग नहीं मैसेज भेजेंगे मैं नहीं समझ पाऊंगा। ओके, so next thing is topological space X is T1 and only every finite subset of X is discrete. Okay, this comes from the above observation. Okay, so do it your own. So this part we know, and the converse part is do it your own. And third thing is subspace of a T1 space is T1 of T1 is T1. So this is also very easy. Suppose we have X at T1 space and Y is a subset of X. In Y we have subspace topology. So to show Y is T1, what you do, you take okay,
You just prove that the singleton set in the subspace topology is closed. Okay, so take a singleton set Y in, so take singleton set in Y. Okay, prove that this is closed in Y. Since this Y is capital Y is again a subset of X, therefore Y is a subset of X. And since X is T1, okay, this Y is, this singleton Y is closed. But you know, it's same as this. Hence, Y is singleton Y is closed subspace topology. Therefore, Y is 1. Okay. Next thing being this, next thing, this T1 property. Okay, this T1 property is topological. Okay, so this means homeomorphic image of a T1 space is T1. So you see, we have seen this yesterday. Please recall the proof of following theorem, which says that homeomorphic image of a T0 space is T0. So do like this, you will definitely you will be able to prove this. Okay, or okay, let me give you a hint, another hint. Suppose X is T1 and F from X to Y is a homeomorphism. Okay, and this is T1. Our claim is Y is T1. To show Y is T1, we have to show that every singleton set in Y is closed. Okay, so take any singleton set Y in capital Y. What will be its inverse image? It will be something F inverse Y. Okay, a singleton, because F is 1 1, correct, and it is onto also. So F inverse Y is closed in X. And you know F is a closed map. F is a closed map because F inverse is continuous. F is closed map. So when you apply F on F inverse Y, you will get Y. So because F is closed, image of a closed set is closed. Okay? So therefore this Y is closed. Okay. So next thing, next result. So this is also an observation. So we have seen that if we have seen that this is a T1 space. Okay, this is a T1 space. So suppose we have a set X and we have another topology tau. Okay, we know this topological space X, where tau CF is the cofinite topology on X. This space is T1. We know this. Okay, if this, then X tau is T. Okay, any topology finite and cofinite topology will be T1. Okay, is this correct? So now we come to T2 spaces. Wait a minute. Huh?
Okay. So you all know the definition of T2 space or Hausdorff space. So by definition, you all know that if the T2 space is T1 space and T1 space is a T0 space. Okay. Now, can anyone give me some examples of Hausdorff or T2 spaces? क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है हाउसड्रॉप स्पेसेस का? निहारिका, यस सर। T2 स्पेस सर का कई कोई सारे एग्जांपल? हाँ, कई सारे में सर से कोई जैसे एक दीजिए। जैसे लोअर लिमिट ले लें हम या फिर अपर लिमिट या डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें तो सर वो हाउसड्रॉप होगी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी क्या होगी? हाउसड्रॉप हाउसड्रॉप हाउसड्रॉप। ओके, नंबर एक आपने बोला डिस्क्रीट टोपोलॉजी हाउसड्रॉप होगी, क्यों? क्योंकि सर इसमें सारे सिंगलटन्स भी होते हैं तो वो हाँ, तो कंडीशन आपने पूरी। मान लो 2 पॉइंट लिए एक्स और वाई इन एक्स, तो आप मुझे 2 ओपन सेट बता सकती है जो कि एक्स को कंटेन कर रहा हो, एक वाई को कंटेन कर रहा हो और दोनों दोनों। यस सर, अगर इनका सिंगलटन सेट हम ले लें तो वो भी ओके, आपने कहा एक्स इसमें है और वाई इस वाले ओपन सेट में है और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है ना? यस सर। चलिए, बहुत सही। क्या कोई इनडिस्क्रीट स्पेस भी हाउस ड्रॉप हो सकता है? इनडिस्क्रीट या ट्रिवियल स्पेस हाउस ड्रॉप हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि सर वहाँ पे ओपन सेट हमें या तो 5 मिलते हैं या तो पूरा एक्स मिलता है। तो इस तो केस में दोनों या तो हम ऐसा कहें कि भैया हमारे पास 2 पॉइंट ही ना मिला, हमें एक ही पॉइंट मिले, हमें अगर एक ही पॉइंट मिले तो सर करके देख सकते हैं। इनडिस्क्रीट स्पेस में अगर एक्स के पास मान लीजिए केवल एक ही पॉइंट है, तो ये तो सेम टोपोलॉजी डिस्क्रीट भी हो जाएगी ना इस केस में। यस सर। तो इस केस में ये हाउस ड्रॉप होगा, ये वाला केस एक हाउस ड्रॉप होगा इफ इफ एक्स के पास कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और साथ में हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हैं, तो उस केस में ये हाउस ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ओके इनडिस्क्रीट सर। spaces containing at least 2 points है are not house ड्रॉप। करेक्ट? क्या यूजुअल टोपोलॉजी हाउस ड्रॉप है? यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर? यस सर, यस सर, हाउस टॉप हो। एक्स और वाई 2 पॉइंट दिए हमने, तो आप कैसे बताएंगे कि एक्स और वाई के लिए 2 ओपन सेट्स हों, ओपन नेबरहुड्स हों जो कि डिसजॉइंट मिले? सर इनकी डिस्टेंस लेके अगर उनका हाफ ले ले तो एक में हम ओके, एक्स आप कह को रहे ये इंटर पूरा करवा देंगे। इसका हाफ ले लेंगे तो हम छोटा सा एक पार्ट बना देते हैं ना, ये वाला पार्ट ले लो एक, है ना? ठीक बोल रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। इसके अलावा हर एक मीट्रिक स्पेस हाउस ड्रॉप होता है, ये हमने पहले देखा था, है ना? मीट्रिक स्पेस इज हाउस ड्रॉप। तो वही सेम ट्रिक जो आपने ऊपर प्ले की है वही होगा। एक्स और वाई 2 पॉइंट हैं और जो क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब डी एक्स वाई पॉजिटिव होगा। वी कॉल
this delta, then take this, okay, and y delta by 3, okay. So इसको आप u नाम दो, इसको आप v नाम दो, u intersection v empty होगा, correct. So this is open, and they are disjoint, correct. Okay. नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे पास ए बी सी एक सेट है, मैं दो टोपोलॉजी लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा हाउस ड्रॉप है, कौन सा नहीं। ये एक टोपोलॉजी है, दूसरी टोपोलॉजी है आपको दोनों टोपोलॉजी दिखाई दे रही है? यस सर। कौन सी टोपोलॉजी हाउस ड्रॉप है, कौन सी नहीं? सर या T1 दोनों? तो प्योरली हाउस ड्रॉप है। T1 हाउस ड्रॉप है, यस सर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ना। यस सर। और T2? सर ये हाउस ड्रॉप। दूसरा हाउस ड्रॉप है। क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, क्योंकि क्योंकि सर अगर हम ए बी ले रहे हैं तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर अगर हम बी सी ले रहे हैं तो वो नहीं, दो सेट हमें ऐसे मिल पा रहा है। हाँ, तो हमें सभी पेयर के लिए होना चाहिए ना, सभी के लिए होना चाहिए। तो क्योंकि बी और सी के लिए काम हो रहा है हमारे पास, तो ये T2 इज नॉट हाउस ड्रॉप, दिस इज नॉट हाउस ड्रॉप, दिस इज हाउस ड्रॉप, करेक्ट। यस सर। कोफाइनाइट टोपोलॉजी देखते हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी आपने देखा था कि वो T1 है, क्या वो T2 है, ये भी देखते हैं। आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ओके। तो क्या ये T2 होगी, हाउस ड्रॉप होगी ये टोपोलॉजी? क्या लगता है? क्या आपको हाउस ड्रॉप टोपोलॉजी में दो ऐसे ओपन सेट मिल सकते हैं जो कि इंटरसेक्ट ना करें? यस सर, मिल सकते हैं। कौन कौन से मिलेंगे बताइए? सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपने, वैसे अगर हम करेंगे तो उसमें से अगर एक्स वाई ले रहे हैं तो एक में से एक्स हम निकाल दें और एक में से वाई निकाल दें, तो ओके, आपने ऐसे आपने मिलेगा। कहा एक में से एक्स निकाल, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? डिसजॉइंट भी तो होना चाहिए ना, क्या वो? यस सर। आपने यस कहा सर। कि r माइनस एक्स कर देता हूँ, ये y को बिलोंग कर, ये y को कंटेन करता है, और r माइनस वाई एक्स को कंटेन करता है। क्या ये u है, इसको u नाम देता हूँ, इसको v नाम देता हूँ। u इंटरसेक्शन v क्या है? क्या ये एम्प्टी है? हम्म? नो सर, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है ना। यस सर। इनफैक्ट आप कोई भी दो ओपन सेट लेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोई भी दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट, any pair of T sets of finite topology
तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट टोटल वो चल रहा है, इनफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इनफाइनाइट सेट। आर नॉट डिसजॉइंट। क्या गुड। तो आपने देखा कि T1 स्पेसेस T2 हो ये जरूरी नहीं है, एक एग्जांपल ये रहा है ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि हाउसडॉक है, हाउसडॉक स्पेस such that every subset of X is either open or closed, है? या तो ये ओपन होगा या ये क्लोज हो। ऐसे स्पेसेस को हम डोर स्पेस कहते हैं, या तो वो खुला है या ये बंद है, इस तरह से हम डोर का मीनिंग कहते हैं। तो इधर ओपन और क्लोज कोई भी सेट है, या तो वो ओपन होगा या वो क्लोज होगा, ऐसे स्पेसेस को हम डोर स्पेस कहते हैं। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि हाउस ड्रॉप है और साथ में डोर स्पेस है, देन X can have at most one limit node। ये मैं आपके लिए प्रूफ इसका छोड़ता हूँ, एक्सरसाइज आप देखिए, ये बहुत इजी सा है, तो ये आपके लिए छोड़। नाउ एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये आप T2 if and only if and only the diagonal, okay, diagonal delta closed in X process। okay? अभी ये डायगोनल क्या है ये देखते हैं पहले। तो एक मान लो ये एक स्पेस X है, मैं X क्रॉस X लेता हूं, तो ये X क्रॉस X ये होना चाहिए। तो डायगोनल आप इंट्यूटिवली क्या होना चाहिए बताइए, अगर ये X क्रॉस X है, इसका डायगोनल क्या होना चाहिए? कोई बताइए। इंट्यूटिवली सोचिए, क्या चीज, कौन से सेट को हम डायगोनल कह सकते हैं? ये सर सेट, जिनकी ये जो डिस्टेंस एक्स और वाई पे सेम होगी बस। ये जो ये जो ड्रॉ किया, ये डायगोनल हो सकता है ना? ये आपके डेफिनेशन के हिसाब से सही बैठेगा। यस तो सर। इसको हम डायगोनल कहते हैं, डेल्टा, इसको हम डिफाइन करते हैं x, x, ओके, x in x, दिस इज a subset of x cross, राइट। ये कहता है कि अगर कोई स्पेस हाउस ड्रॉप है तो डायगोनल क्लोज्ड होगा और कन्वर्स भी ट्रू। ओके, तो हम प्रूव क्या करेंगे कि x क्रॉस x माइनस डेल्टा ये ओपन है। अगर हम प्रूव करते हैं तो डेल्टा तो क्लोज्ड हो जाएगा, है ना। जी सर। अगर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये क्लेम है कि दिस इज ओपन, ओके, तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्लोज। तो लेट्स डू, हमने एज्यूम किया कि x T2 है
ओके, x इज T2। नाउ अगर वो T2 x इज T2 तो इसका मतलब x के पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लो, x कॉमा y, x नॉट इक्वल टू y। ओके, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए तो आपको u और v ओपन सेट्स मिलेंगे such that x in u, y in v and u intersection v is empty। ओके, ये ठीक है ना? यस सर। अभी हम क्या करते हैं, हम u क्रॉस v को देखते हैं। आपने एक काम किया, आपने यहाँ पर एक पॉइंट x यहाँ पर उठाया, दूसरा पॉइंट y यहाँ उठाया। ओके, x उठाया, ये y उठाया, दोनों सेम नहीं उठाए, x x नहीं उठाया, x और y। यहाँ पर आपको u मिला और यहाँ पर आपको v मिला, तो ये क्या, ये कौन सा u क्रॉस v क्या है, ये बनेगा। देखिए, दिस विल बी u क्रॉस v, दिस इज u, दिस इज v, देन दिस सेट इज u क्रॉस v एंड दिस, ये वाला पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस इज x कॉमा y। करेक्ट? So what you get a point x comma y in u cross v। आपने एक चीज नोट करी कि x और y दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो पेयर x y है वो डायगोनल में नहीं होगा। है दिस करेक्ट? यस यस सर। अब हम क्लेम करते हैं, अवर क्लेम नाउ इज u क्रॉस v इंटरसेक्शन डेल्टा इज एम्प्टी। है, तो मान लेते हैं अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, u क्रॉस v इंटरसेक्शन डेल्टा अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये तो किसी, ये इंटरसेक्ट करेगा तो कोई एक z जो है वो दोनों में होगा, कोई एक z x होगा जो कि z कॉमा z इन डेल्टा, ओके, और z कॉमा z इन u क्रॉस v, ऐसा होगा, है ना? यही तो मीनिंग है उसका। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कोई एक पेयर इसमें होना चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन में। पेयर एग्जिस्ट, which is same as saying z belongs to u and z belongs to v, but this is same as u intersection v is non-empty, but this is not true because we have said that u intersection v is empty, so this is a contradiction। okay, thus इसका मतलब हमें क्या मिला, whenever जब भी x y डेल्टा के बाहर है, there exists an open set u cross v in x cross x such that u cross v is contained in x cross x minus डेल्टा। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए, इसके हर एक पॉइंट के लिए आपको एक ओपन सेट मिला है जो कि इसके अंदर है। सो दिस मींस दिस इज ओपन। okay, this is the definition of an open set, implies x cross x minus delta open, which is same as saying delta is closed। is this correct? यस यस सर। हाँ, अभी कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स भी बहुत इजी है। सपोज डेल्टा इज क्लोज,
suppose this is closed in cross x, we have to show that x is t2. तो आप दो पॉइंट उठाएंगे x, y in x and where x is not equal to y. Okay, तो जब x और y सेम नहीं है, इसका मतलब x और y कहाँ नहीं है, डेल्टा में नहीं. ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मालूम है कि डेल्टा क्लोज्ड है और आप उसके बाहर एक पॉइंट उठा रहे हैं, तो आपको एक ओपन सेट मिलेगा. देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट V क्रॉस V open in x cross x such that x comma y will be in this open set and it is contained in x cross x minus delta. Okay, so this means u cross v intersection delta is empty. लेकिन अभी अभी आपने प्रूव किया कि जब भी u इंटरसेक्शन v अगर empty होगा तो ये भी empty होगा. ओके, और vice versa, whenever this is empty u intersection v is empty, so which is same as u intersection empty. Okay, so and from this x belongs to u, y belongs to, from this x belongs to u and y belongs to v. So this implies x is t2. Okay, it is correct. So Yes, sir. some easy observation that you will do. Subspace of a T2 space, do very easy. Second thing, homeomorphic image of T2 space is T2. तो ये सेम जैसे T1 के लिए किया वैसे ही T2 के लिए. आपको अब ये मालूम है होम्योमॉर्फिक 1 1 होता है, तो आप सिंपली देख सकते हैं ये x T2 था, आपको प्रूव करना है y भी T2 होगा, तो दो पॉइंट उठाएंगे x और y. ओके, तो इनकी इनवर्स इमेज यहाँ पर कुछ होगी f इनवर्स x, इसका f इनवर्स y. दोनों डिस्टिंक्ट है क्योंकि 1 1 है, तो यहाँ पर आपको एक u मिलेगा, एक आपको v मिलेगा. ओके, दोनों डिसजॉइंट होंगे, लेकिन f क्लोज्ड है, f एक क्लोज मैप है, सॉरी ओपन मैप है. तो इनका जो आप f ओपन मैप है, तो आप क्या करेंगे, f अप्लाई करेंगे इस u में और f अप्लाई करेंगे v में. तो ये u वाला है तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेट मिलेगा और दूसरे के लिए एक दूसरा सेट मिलेगा. है, तो दोनों ये fu होगा, ये f of v होगा. Because f is open, this is open. Because v is open, u and v both are open. fu, fv both are open, and u intersection v is empty. F is 1 1 and on 2 implies fu intersection fv is. Okay, so this part is very easy. Similarly, third observation is a product of, if we take product topology on this Cartesian product, okay, x is house drop and only each xi is house drop. Okay, this is also very easy. Please do it your own. Okay, एक जो नॉन ट्रिवियल रिजल्ट है वो मैं आपके लिए करता हूँ, लेकिन वो भी ट्रिवियल रिजल्ट है. थ्योरम let x be a topological space, okay, and y be a T2 space. Let f from x to y
ये continuous match. Then f has a closed graph. Okay, what does this mean? पहले तो हम ग्राफ देखें, ग्राफ मतलब g of f, वो इस फॉर्म का होगा x, fx, where x comes from x, which is a subset of x cross y. Okay, this set gf is called graph of. तो ये x था, ये y था, ग्राफ का मतलब ऐसा कुछ, ये एक ग्राफ है। तो इस x के लिए आपको ये पॉइंट x, fx मिलेगा। इसके लिए x1 के लिए ये पॉइंट आपको x1, fx1 मिलेगा। ओके, if f is continuous and y is t2, okay, then this graph is closed in x cross y. So this thing is very easy. Okay, हमने एक चीज और आपको याद हो, जब हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस नहीं, फर्स्ट काउंटेबल से भी पहले हम ये कर रहे थे। हाँ, फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस में ही शायद हमने किया। हमने देखा कि कोई स्पेस अगर फर्स्ट काउंटेबल हो और साथ में हाउस ड्रॉप भी हो, क्या, तो वहां पर क्या था कि आपके पास, आई थिंक हमने केवल और केवल हाउस ड्रॉप स्पेसेस के लिए पढ़ा था। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके पास एक एटमोस्ट वन लिमिट होगा। ओके, नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट होगा, ये हमने पढ़ा। ओके, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो यूनिक लिमिट केस ऑफ हाउस ड्रॉप। ओके, तो ये हम देखते हैं। तो आपको मालूम है कि क्लोज सेट वो होता है जो इसके सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो। तो आप प्रूव करिए कि जीएफ जो है इसके हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। सो सपोज एक्स वाई इज ए लिमिट पॉइंट, एक्स वाई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ जीएफ, और एक्स वाई कहाँ पर है? एक्स क्रॉस वाई में। मान लो कोई एक पॉइंट एक्स वाई है इस एक्स क्रॉस वाई में, जो कि लिमिट पॉइंट है किसका? ग्राफ का। इसका मतलब क्या है? आपको एक सीक्वेंस मिलेगा एक्स एन वाई एन कमिंग फ्रॉम ग्राफ, कमिंग फ्रॉम ग्राफ such that x and yn converges to xy. Okay, this means xn converges to x and yn converges to y, and you have f continuous function, continuous. Okay, this means, what does this mean? This means f of xn, इससे भी पहले okay, this now, since this xn yn, it comes from this graph. Okay, so therefore this yn is nothing but f of xn. okay, आप यहाँ ग्राफ की डेफिनेशन देखेंगे तो ये x fx है, so therefore yn would be fxn. Okay, so from the definition of continuous function, so this converges to y from here, and this converges to, this will also converge to y. Okay, but it also converges to fx by the definition of continuity. Okay, so since you have already seen that every convergent sequence has a unique limit, so this is the same sequence which has two limits, y and fx. This means y equal to fx. Okay, what does this mean? This means this xy is nothing but x comma fx.
which is a point of graph. Okay, and hence graph is closed. Right, graph is closed. Okay, so we are done. So I'll stop here. We will meet on Thursday. Okay, so please be prepared for tomorrow's test. बेस्ट ऑफ लक। और फिर से वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे पिछली बार थे, स्मॉल, बहुत छोटे, लेकिन कैसे, लेकिन वो बिल्कुल आपको जब तक थ्योरी नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा कि आप अपने नोट से लिख लें, बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कल की तैयारी कीजिए, ठीक है? सो सी यू। Okay, sir. Thank you. Done.